Hello students, welcome in my channel. Students, we are going to discuss the basic concept of chemical reactions in today's lecture. What is the basic concept of chemical reactions? So before going to see the basic concept of chemical reactions, we must know what is the chemical reactions. So chemical reactions means actually what? So it is the change from that particularly reactants are going to convert into the product, correct? So in our day-to-day life we can see the different examples where we are observing the reactants is going to convert into the products, and we can say that that is actually nothing but the chemical reactions. But actually the meaning of chemical reactions is what, that I am going to explain you in details in this particular topic. So let us see students, you can see the different types of reactions. A plus B gives AB, or another A plus B gives A plus B plus C gives AB plus C. Such a type of different reactions you may have seen, or sometimes you may have seen the AB gives A plus B. These are the some general reactions I am writing. Okay, so these are the some general reactions I am writing here, but students keep in your minds what it means, what it indicates, what is actually the chemical reactions, how it takes place, whose role is very important. So that we are going to discuss in details, and that is the basic concept actually. So students, if you are going to see any type of chemical reactions, two things you are going to observe. What is the two things? See, reactant you are observing, and product also you are going to observe, correct? So these two things anyhow in any chemical reactions you are going to see, correct? But now what is the reactant and what is the product, correct? How it particularly reactants convert into the product, this is the main questions, correct? And then actually we are going to indicates that what is the chemical reactions. So reactants means the part of the reactions where the actually reactions is going to start. Okay, so this is the reactant part. But what is actually the reactants? A reactant consists of substrate and a reagent. Understand what is this? Is very important to understand the chemical reaction. A reactant consists of substrate and a reagent. Okay, so when this substrate and a reagent is there, then and then only the chemical reactions will be takes place. Understand? Now most of the times we know that only reactant, but reactants also consist of substrate and reagents, then and then only the chemical reactions is possible. Understand? Now again the questions is there, what is substrate and what is the reagent? Understand? So this is again very interesting students. Substrate means what? Substrate means it is the part of the reactant. It is the part of the reactant where the reagent is going to attack. Where the reagent is going to attack. This is the substrate. So keep in mind these things. What is the substrate? Substrate means it is a part of the reactant. Where the reagent is going to attack. So on the substrate, who is going to attack? A reagent is going to attack. Now who will tell me what is a reagent? Reagent is the species. Which is going to attack on the substrate. Understand now, this is very important. This is the part of actually reactant. If both the things are there, then and then only the reactant fulfills their need, and then it will be converted into the product. Otherwise it is very difficult. So both the things is required. Understand? Or sometimes you require the conditions for the chemical reactions, means heat, light, or we can say that the electricity or temperature, pressure, catalyst. This is also the part of the reagents. Okay, so such a type of conditions also going to provide in the chemical reactions to us, and then they are providing us the product. That is also very important. So only by taking only the reactants you can't convert into the product. अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये ध्यान में लेना है आपको। आज का जो टॉपिक्स है ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए लाया हूँ मैं,
आप लोगों के लिए कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस तो बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना भी है, बहुत बार करते भी है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, अगर किसी को पूछा तो वो क्या बोलता है, एक रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट बन जाता है। अरे वो तो भैया बराबर है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता कैसे है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछा तो वो बोलता है मालूम नहीं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। रिएक्टेंट्स एक्चुअली सबस्ट्रेट और रिएजेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट होना जरूरी होता है। अब ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट का क्या फंडा है तो वो भी मालूम होना चाहिए। सबस्ट्रेट एक ऐसा पार्ट है रिएक्टेंट का जिस पे एक्चुअली रिएजेंट्स अटैक करते हैं। आ रहा है समझ में? तो केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट भी होना जरूरी है और रिएजेंट भी होना जरूरी है। तो सबस्ट्रेट रहेगा और रिएजेंट नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो रिएजेंट ऐसा पार्ट है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करने वाला है। आ रहा है कि समझ में? तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर दोनों साथ में चलेंगे तो आपकी नैया पार होने वाली, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। और कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शंस में हमने देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की कंडीशंस भी उस पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें अलग अलग कंडीशंस भी प्रोवाइड करना पड़ती है, जैसे टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, या उसको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, या उस पे और भी अलग अलग चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ता है और केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करनी पड़ती है। तो वो भी चीज़ें इसमें मायने रखती है। अंडरस्टैंड? सो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपका रिएक्टेंट्स आपको देने वाला है प्रोडक्ट। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे सबस्ट्रेट और ऐसे रिएजेंट्स ये हमें मालूम होने चाहिए पहले। ओके, तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट क्या होता है मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सबस्ट्रेट ऐसा रिएक्टेंट का पार्ट है जिसमें आपका रिएजेंट्स उस पर अटैक करने वाला है। अभी तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार यही होगा, ये रिएजेंट्स होता क्या है एक्चुअली, ये बार बार सर बता रहे हैं रिएजेंट रिएजेंट, ये रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है। तो वो रिएजेंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रिएजेंट भी दो टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। वो कौन से होते हैं ये पहले हम देखने वाले। तो रिएजेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एक्चुअली, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। सो रिएजेंट्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं बच्चों। तो उसमें एक है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है आप लोगों के लिए। अभी देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। कुछ बच्चे तो पहली बार सुन रहे होंगे ये क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन कम होने वाले, बराबर है? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना है उसको। केमिस्ट्री में जनरली डे टू डे लाइफ का बात बता रहा हूँ मैं। तो हम देखते हैं कुछ लोग अमीर होते हैं उसको हम ज़्यादा पैसे वाले बोलते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं उनको हम गरीब लोग बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बच्चों जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो है अमीर, वो है श्रीमंत, वो है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, पैसे वाला, ज़्यादा पैसे वाला। कौन है? जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो है अमीर। तो इसमें अमीर कौन है? तो इसमें पैसे वाला कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला पैसे वाला बन गया हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, याद रखिए। तो न्यूक्लियोफाइल्स पैसे वाला होता है और इलेक्ट्रोफाइल्स तो ये तो गरीब होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बराबर है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अभी इनको दिखाते कैसे? ये इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा प्लस के फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स ये प्लस के फॉर्म में रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो कि वो माइनस के चार्ज में रहेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो नेगेटिव साइंस का मीनिंग क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, इसलिए उसको ये इंडिकेट किया जाता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पैसे वाला है वो साला, और ये गरीब है। आ रहा है समझ में अभी? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपका गरीब है और न्यूक्लियोफाइल्स आपका अमीर है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी चलते हैं हम इसका यूज़ हम सबस्ट्रेट पे कैसे करेंगे।
अभी मज़े की बात देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल्स अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो खुद गरीब है, तो आपको मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर जाके प्रोडक्ट बनने वाला है। आ रहा है समझ में? अगर आपका सबस्ट्रेट, अगर आपका रिएजेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन्स का गरीब बंदा है, तो उसको सबस्ट्रेट कैसा चाहिए आप बोलिए फिर। अभी अगर वो खुद गरीब है, वो खुद इलेक्ट्रॉन्स का मोहताज है, तो उसको आपको कैसे स्पेसिस चुनेंगे, कैसा सबस्ट्रेट चुनेंगे उसको? ऐसा उसको सबस्ट्रेट वो चुनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अंडरस्टैंड? तो ये जो अटैकिंग स्पेसिस है, रिएजेंट बोले तो क्या, मैंने रिएजेंट का मतलब बताया था, ये ऐसे पार्ट है रिएक्शंस का, वो स्पेसिस पे अटैक करने वाला पार्ट है। किस पे? सबस्ट्रेट पे। तो ये बंदा ढूंढेगा अमीर सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट ये ढूंढेगा कौन सा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन रिच को ढूंढेगा ये, बराबर है। तो ये जो अटैक करेगा, तो ये ऐसे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, न कि जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी ये तो कम है, और फिर अगर वो इस पे कम करेगा तो उसका क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं, बराबर है। तो ये हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच पे। जैसे कि देखिए, अगर हमारे डे टू डे लाइफ में भी एग्जांपल्स अगर हमने देख लिया, तो कोई अगर बहुत ज़्यादा अमीर होगा, बहुत ज़्यादा अमीर, कोई बहुत गरीब होगा, तो वो अटैक कौन करेगा? गरीब वाला आदमी अमीर पे अटैक कर सकता है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा ही है, एक गरीब है, एक अटैक किस पे कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच पे। तो आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए उधर? सबस्ट्रेट होना चाहिए अमीर। आ रहा है बात समझ में? वेरी क्लियर। तो ऐसे ही देखते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स है। अभी न्यूक्लियोफाइल्स रिएजेंट मीन्स वो ऑलरेडी अमीर है, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, वो क्या करेगा फिर? अरे मेरे पास है भाई, मैं देता हूँ, क्यों डर रहे? तो वो सबस्ट्रेट ऐसा चुनेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन कम है। समझ में आ रहा है अभी? तो ये अटैक किस पे करेगा? ऐसे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा तो इलेक्ट्रॉन्स वाला है, वो पैसे वाला बंदा है। तो वो ऐसे बंदे को चुनेगा, ऐसे सबस्ट्रेट को चुनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। आ रहा है समझ में? बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब जब जाके आपको रिएजेंट समझ में आएंगे, सबस्ट्रेट समझ में आएंगे, तो फिर तो रिएक्शंस बनना ही है। अंडरस्टैंड? फिर तो रिएक्शंस बनने वाली आपका। तो ये रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। जब आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो वो कौन से सबस्ट्रेट पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट पे जाएगा। और जब आपका इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होगा तो वो कौन से सबस्ट्रेट पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबस्ट्रेट पे जाने वाला है। और तब जाके उन पे रिएक्शंस होगी, फिर जाके प्रोडक्ट बनने वाले। प्रोडक्ट ऐसे कैसे बनेंगे? आ रहा है कि समझ में? प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्ट कैसे बनेंगे? डायरेक्ट नहीं बनेंगे। तो एक पूरा प्रोसेस होता है उस पर, और फिर जाके आपको प्रोडक्ट उस पर बनने वाले। सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट जो मुझे बताना था आपको। तो फिर हम इसमें आगे जाने वाले हैं, इसमें और भी बहुत से पार्ट है, लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक एक्चुअली कंसेप्ट क्या है केमिकल रिएक्शंस का। आई होप यू एंजॉय द वीडियोस एंड आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, आगे का पार्ट। तो आपको और भी मज़ा आएगा एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, नया नया चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप शेयरिंग द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।